નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, ધીસ ઇઝ પાર્ટ 4 ઓફ ચેપ્ટર 2 શેપ્સ એન્ડ એંગલ્સ, સ્ટાન્ડર્ડ 5th મેથેમેટિક્સ. Now let's try to understand angles and time. Zenith, your watch does not have digits. How do you read time? अब जीनत को एक क्वेश्चन हुआ. इसके पास जो क्लॉक थी उसमें कोई भी डिजिट तो नहीं लिखे थे, फिर हाउ इज इट पॉसिबल टू रीड टाइम? तो इसने क्या जवाब दिया? आई जस्ट सी दी एंगल्स. सी, when the hands make a right angle, I know it is 9 o'clock. So जब 9 बजते हैं, then at that time the angle will be 9 o'clock. And I hope you also will be able to read the time without, if there is no digits in that dial. Okay. There are many times in a day when the hands of a clock make a right angle. Now you draw some more. अभी दिन में काफ़ी ऐसे टाइम है when the hands of a clock make right angle. अब आपको पता है कौन से टाइम पे ये जो अपना हैंड है वो राइट एंगल बनाता है. अपना हैंड मतलब क्लॉक का हैंड राइट एंगल बनाता है, आपको पता है? चलिए देखते हैं. एक तो 3 बजे, isn't it? So here this is 3 o'clock and this is right angle. दूसरा होगा 6:15 मतलब 6 and 15. So here let me draw 6 and 15. This is also right angle. And can you guess another one? Let me say it is 10 and 5. It is 10 and 5. So at the time 10 hours and 5 minutes there will be a right angle. So by what time? It is 3 o'clock. It is at 3 o'clock, 6:15, and at the time 10 and 5, 10 hours and 5 minutes. By that time our clock, the hands of our clock make a right angle. Okay, next see now. Write what kind of angle is made by the hands at these times. Also write the time. अभी यहाँ पे see there are different time in the clock, you can see, and see in between there is hand, there is an angle. Here also, here also, here also you can see angle, है ना? Then write what kind of angle is made by the hand at these times. ये अलग अलग टाइम पे ये जो हैंड्स है उसने कौन सा एंगल बनाया है, मतलब के इट इज लेस देन, see here it is less than right angle, here it is more than right angle, here it is more than right angle, this is more than right angle, and this is something less than right angle. And what is the time? Let's do this activity. Here you can see this is 7 hours and 25 minutes, isn't it? And it is less than right angle. Here you can see 8 hours and 15 minutes, and it is larger than right angle, isn't it? See, it is something big or large than right angle. Here it is 9 hours and 10 minutes, and this is also larger than right angle. Here you can see 9 hours and 25 minutes, and this is also larger than right angle. Here you can see exactly 10 o'clock, है ना? So it is less than right angle. So this is the activity. Let's go further. Draw the hands of the clock when they make an angle which is less than a right angle. Also write the time. अब हमने क्या करना है? We should draw the hands of a clock. But what time we should draw?
it must be there must be less than right angle in between two hands of the clock. तो ऐसे सभी हमने टाइम लिखने हैं और उसके हैंड्स वो है उसको ड्रॉ करने हैं. देखिए यहाँ पे सी दिस इज 9:35 but the angle is less than right angle. Here you can see it is 2 o'clock. Okay, so it is 2 o'clock but the angle is less than right angle. You can see that here it is 3 hours and 5 minutes, isn't it? And you can see the angle is less than right angle, isn't it? Let's go further. Now there is another thing is that degree clock. Appu and Kittu are playing carom board. Appu hit the striker. See, here is Appu and here is Kittu. And Appu ne hit the striker. Appu hit the striker. And what Kittu is thinking? It comes back at the same angle. It comes back at the same angle. Now let me make you understand what is the same angle. It get back at the same angle. किट्टू ने बोला ना, तो मैं आपको समझाता हूँ. सपोज ये आपका कैरम बोर्ड हुआ, ठीक है, और अगर यहाँ से आप स्ट्राइकर को हिट करते हो, लेट मी ड्रॉ प्रॉपरली, यहाँ से अगर आप हिट करते हो तो वो यहाँ पे आएगा. अब सेम एंगल कैसे हुआ? तो एक्चुअली ये जो एंगल है उसमें इसके बराबर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है. ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है ना, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होते हैं. ओके, आई होप यू मस्ट हैव गोट दिस आइडिया, इजंट इट? तो ये इसलिए किट्टू सोच रहा है कि ये व्हेन it hits the striker, it come back at the same angle. In the picture, 3 points A, B and C are shown. Draw a line to show from which point Kittu should hit to get the queen. अब देखो, आप शायद कैरम खेलो हो ना, तो यहाँ पे एक ये जो है वो क्वीन है और उसको हिट करना है. तो ये ए वाले पॉइंट से, बी वाले पॉइंट से या सी वाले पॉइंट से कहाँ से हिट करना चाहिए, सो दैट के किट्टू कैन गेट द क्वीन और किट्टू कैन हिट द क्वीन. अब देखिए एंगल तो सेम होना है. देखिए मैंने आपको जो परपेंडिकुलर लाइन बताई थी ना, वो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है. तो एंगल ऐसा बनाना है जिसकी वजह से सेम एंगल हो. तो देखिए मैं बनाता हूं. दिस इज ट्राई. इट मे नॉट बी राइट. ओके, देखिए ये एक एंगल हुआ. तो यू कैन सी दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर सेम. अगर यहां से हम ड्रॉ करते हैं, देखिए यहां से, देन इट विल नॉट बी द सेम. फ्रॉम हियर ऑल्सो इट विल नॉट बी सेम, बट ओनली फ्रॉम point A it is same. That is why we can say Kittu should hit the striker from point A so that he can hit the queen. Let's go further. Activity making a degree clock. Cut a circle out of paper. यहाँ पे एक सर्कल है, उसको पेपर में से एक सर्कल काट लिया. Fold it into half. अब उसको यहाँ से फोल्ड करना है, सो इट विल गेट हाफ. फोल्ड इट इनटू हाफ. फिर उसको यहाँ से फोल्ड करना है. फोल्ड इट वंस अगेन इनटू क्वार्टर सो दैट के ऐसा हो जाएगा, ठीक है. फिर फोल्ड इट वंस मोर. यहाँ से फिर से उसको फोल्ड करना है सो दैट के इट विल लुक लाइक दिस वन. फिर ओपन द पेपर. यू विल सी लाइन्स लाइक दिस. वी कैन सी, देखिए इतना फोल्ड किया तो इतनी लाइंस हमें फोल्ड वाली लाइंस मिलेगी, इजंट इट? आगे देखते हैं. नाउ मेक 0, 45, 90 एंड 180 डिग्री. सी हियर यू विल राइट 0, हियर यू विल राइट 90, हियर यू विल राइट sorry 0, 45, 90 एंड हियर इट विल बी 180 डिग्री. ओके, फिर क्या करना है?
पेस्ट इन ऑन एन ओल्ड कार्ड, एक कार्ड लेना है और उसके ऊपर इसको पेस्ट करके लेना है। फिर फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ वन हैंड, यहां से सेंटर से एक आपने ड्रॉ कर लिया हैंड, कैन यू सी दिस। देन मेक ए रेड हैंड विथ ए थिक पेपर एंड फिक्स इट टू द सेंटर विथ ए ड्रॉइंग पिन सो दैट इट इज फ्री टू मूव। अब एक आपने क्या करना है, रेड हैंड लेना है, एक रेड हैंड बनाना है विथ थिक पेपर, फिर उसको यहां पे पिन से अटैच कर देना है सो दैट के दिस रेड हैंड कैन मूव इन दिस डिरेक्शन वेरी फ्रीली। ओके, योर डिग्री क्लॉक इज रेडी। यूज योर डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स। Use your degree clock to measure the right angle of your pencil box. Blank is the measure of the right angle, so it is 90 degree. Pencil box का जो measure होता है वो 90 degree होता है. It is something like L, isn't it? We discussed it earlier. It is something like L, and that L is 90 degree. Can you guess how many degree is the angle which is 1/2 of right angle? See, 1/2 of right angle is 90 degree. So 1/2, 90 divided by 2, it is 45 degree. So 90 divided by 2 is equal to 45. 1/3 of a right angle, that is 30 degree. How is it so? Because right angle is 90 degree divided by 3 is equal to 30 degree. 2 times a right angle, मतलब 2 टाइम a right angle, that is 180 degree. 2 टाइम मतलब 90 degree, 90 multiply by 2 is equal to 180, and 90 degree is called right angle. जो 90 डिग्री होती है उसको राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने अभी तक डिस्कस की ना राइट एंगल की, दैट इज व्हाट डिग्री, 90 डिग्री। मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर किट्टू शुड हिट द स्ट्राइकर ऑन पेज 30। अब आपको वो एंगल मेजर करना है, ठीक है, सो दैट के किट्टू कैन हिट द क्वीन। नाउ अनदर एक्टिविटी इज देयर। टेक ए स्क्वायर sheet of paper, take a square sheet of paper, here you can see, fold it half and open it। अब इसको हाफ करना है और फोल्ड करना है, फिर उसको ओपन करना है, तो we can see a line in between। then fold the corners of the center to the center, fold the corners to the center। ये जो यहाँ से कॉर्नर है ना वो इधर आ जाएगा और ये वाला कॉर्नर इधर आ जाएगा सेंटर में। योर पेपर लुक लाइक दिस, तो आपका पेपर ऐसा दिखेगा। फिर फोल्ड द ग्रीन ट्राइंगल सच दैट पी टचेस क्यू, ये जो पी है ना उसको यहां से फोल्ड करना है, एक्चुअली इसको ग्रीन पार्ट को यहां से फोल्ड करना है, तो पी है वो यहां पे क्यू पे आ जाएगा। देखिए, फोल्ड द टॉप 2 कॉर्नर्स ऑफ दिस रेक्टेंगल अलोंग द डॉटेड लाइन्स। ये जो डॉटेड लाइन्स है ना यहां से फोल्ड करना है, कैसे होता है देखते हैं, चलिए। कैन यू सी, सो दैट इट विल लुक लाइक दिस, योर पेपर विल लुक लाइक दिस। देयर इज ए स्मॉल ट्राइंगल इन द पिक्चर विच हैज टू बी फोल्ड अप। ये जो थोड़ा सा ट्राइंगल है ना उसको फोल्ड अप करना है, इसके ऊपर करना है, ठीक है। टर्न इट ओवर एंड फोल्ड इट इन हाफ अलोंग द डॉटेड लाइन। फिर ये जो अपना है ना उसको टर्न कर लेना है, उसको उल्टा कर देना, तो ऐसा दिखेगा। फिर इसकी जो यहाँ पे सेंटर है ना उसको फोल्ड करना है, ठीक है। टर्न इट ओवर एंड फोल्ड इट इन हाफ अलोंग द डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन से इसको फोल्ड करना है। नाउ टू मेक ए विंग फोल्ड द येलो एज ओवर द रेड एज। अब विंग बनाने के लिए ये जो है ना उसको यहां पे फोल्ड करना है। टर्न इट एंड डू द सेम ऑन द अदर साइड एज वेल। अब एक साइड से किया दूसरी साइड में भी ऐसा होगा, तो दूसरे तो ऑटोमेटिकली इट विल लुक लाइक दिस। आपने वो कागज का एरोप्लेन बनाया ना, ये एरोप्लेन ही है। आई होप यू मस्ट बी एबल टू डू दिस। Your plane is ready to fly. How well does it fly?
अब वो कितना अच्छा उड़ता है वो तो आपने इसको बनाने के बाद ही देखना पड़ेगा, इजंट इट? फाइंड द डिग्री ऑफ 45 एंड 90 व्हेन यू ओपन योर प्लेन। फिर उसको ओपन कर देना है और उसमें जो फोल्ड है उसमें से आपको 45 डिग्री एंड 95 डिग्री फाइंड आउट करना है। नाउ एंगल्स विथ योगा। रहमत is doing yoga. These are the pictures of different asanas he does every day. अब रहमत every day used to yoga and these are the different asanas. और यहाँ पे देखते हैं आप ये जो एंगल है, यहाँ पे जो सभी जगह पे देखिए ये एंगल है, isn't it? फिर यहाँ पे एक एंगल है। मेजर as many angles as you can made by different parts of the body while doing asanas। तो फिर आपने ये जो सभी एंगल्स है वो मेजर करना है, ठीक है। नाउ द डी गेम, यू कैन प्ले द डी गेम। You can play the D game with your friends. You draw an angle. Your friend will guess the measure of that angle. क्या करना है आपको डी गेम खेलना है अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर यू ड्रॉ एन एंगल, आपको एक एंगल ड्रॉ करना है। योर फ्रेंड विल गेस द मेजर ऑफ दैट एंगल, जो आपने एंगल ड्रॉ किया है उसका एंगल जो मेजरमेंट है एंगल का वो आपके फ्रेंड को गेस करना है। देन यू यूज your D to measure it. Then you will use the D to measure it. See here you can see this D shape, isn't it? This D shape is known as protractor. Okay, so आपको फिर वो जो एंगल है उसको मेजर करने के लिए ये D shape मतलब प्रोट्रैक्टर को यूज करना है। क्या करेंगे आप? You will measure that angle. The difference between the measured angle and the guess will be your friend's score. अब क्या करना है? The difference between the measured angle and the guess will be your friend's score. The one with the lowest score will be the winner. मैं आपको समझाता हूँ, चलिए देखिए। आपने क्या करना है, पहले एक सपोज ये एंगल आपने ड्रॉ किया, ठीक है। सपोज आपके फ्रेंड ने बोला, एक फ्रेंड ने बोला इट इज से इट इज 40 डिग्री, इट इज 40 डिग्री, और दूसरे ने बोला इट इज 50 डिग्री, इट इज 50 डिग्री, बट एक्चुअली द एंगल इज 30 डिग्री। ओके, तो यहां पे ये जो डिफरेंस किसका ज्यादा रहा? सी हियर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 10 degree and here there is a difference of 20 degree, isn't it? So who will be the winner? Winner will be this 40 degree wala. Why? Because there is a very less difference in the angle, that is why 40 degree wala will be winner. इस टाइप से आपको अपने फ्रेंड के साथ ये गेम खेलना है। ओके, कैन यू फाइंड दिस D in your geometry box? Measure the angle on माई हेड फैन। देखिए ये हेड फैन है उसका एंगल मेजर करना है और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? प्रोट्रैक्टर इन योर जियोमेट्री बॉक्स। इट इज D, दैट इज इन द जियोमेट्री बॉक्स, यू कैन फाइंड इट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कैसे एंगल को मेजर करना है ये मैं आपको सिखाता हूँ। सपोज ये एक एंगल है, ठीक है, तो आपको प्रोट्रैक्टर कैसे रखना है? सपोज ये जो उसकी लाइन है उसके लाइन के पैरेलल ये पहला जो हैंड है एंगल का इसके ऊपर रख देना है और इसका सेंटर यहाँ पे आना चाहिए एंगल पे। फिर जो दूसरा हैंड है उसको यहाँ पे देखना है, अब ये कितनी डिग्री हुई? देन यू कैन सी इनर साइड, सी हियर इज 0 एक्चुअली, हियर 10 इनसाइड, सी द स्मॉल नंबर्स, कैन यू सी? लेट मी शो यू नाउ। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू सी? See this is 10 degree, 20 degree, 30 degree, 40 degree. So this angle is 40 degree. इस तरीके से आप सभी एंगल्स को कर सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं।
And with this is the end of this chapter. Okay, and watch this video repetitively. Thank you for joining us. Take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.